ਵਾਹਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ न लगै आए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 24 ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 651 ਤੇ 652 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਈਮਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਜੀ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਟਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ ਲੇਵੋ ਆਲ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝ ਲੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
सतगुरु जी के पावन वचन ने कि जिस देह को लोचै देव, सा देह भज हर की सेव। असल में वो देह मिली सेवा ते भगती सिमरन वास्ते है। और गुरु साहब जी ने पावन वचन कहे, जिन्हों ने गुरु की फिर बख्शी हुई सेवा की, ਜਾਂ कह लिया कि जिन्होंने गुरु की सेवा की। गुर सेवा ते सुख उपजै, ते किवें कहंदे गुर सेवा ते भगत कमाई। क्योंकि गुरु की दसी हुई सेवा दे विचों भगती करके कमाई की, भगती दी बंदगी की। गुर सेवा ते भगत कमाई कहंदे तब ते मानस देही पाई। असल विच मनुखा देही मिली भावना करके, भगती करके ते प्रेम करके। और देही मिली कहदे लई सी कि तू उनका सिमरन करके उनका रूप होना, उनकी बख्शी हुई सेवा करनी है। पर सतगुरु जी ने एक पावन वचन कहा, क्योंकि सेवा असीं करने अपने वालों सारी सेवा करते हैं जिवें जिवें दा किसी का मन मनदा है। क्योंकि किसी का मन मनदा कि दरियां झाड़नियां बड़ी वड्डी सेवा है। और मैं बेनती कई बार की, बेशक ये सेवा है। किसी का मन मनदा कि लंगर विच लंगर वरताउणा बड़ी वड्डी सेवा, किसी का मन मनदा भांडे मांजना, इस तो वड्डी सेवा कोई नहीं। किसी का मन मनदा है कि जोड़ियां की सेवा सब तो वड्डी है। पर यह तो साडे आपो अपने मनां दी गल है ना, वड्डी अपने आप ही समझदी ना। गुरु साहब जी कहंदे ने सेवा कीती हुई सफल हुंदी है, पर कदों? कहंदे सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुरु का मन मन्नै। भई जे गुरु का मन मन जाए तो फिर जोड़ियां की सेवा भी सफल है, फिर भांडियां की सेवा भी सफल है। तो गुरु का मन मनदा कित्थे है जी? देखो, मन तो गुरु का मन्ने तो गल बनदी ना। मन तो असीं अपने नूं मनाउण दा यतन करने कि साडा मन मनदा ये सेवा कर लईए। और साडे कोल इतिहास विच उदाहरणां जिन्नियां मर्जी असीं लईए, भरिया पिया इतिहास। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणा च आया सी ना वैद सुजान राय। वैदगी का काम जानदा ते आके कहंदा, सतगुरु जी सेवा बख्शो, मैं भांडे मांज लवां। सेवा बख्शो, गुरु घर दे विच एक कोने दे विच किते मैं जोड़ियां दे विच थां दे दिओ। और सतगुरु जी ने समझाउण वास्ते उत्थे कहा सी कि सुजान राय तो निकल जा, सुजान राय तो भज जा। तो जदों सुजान राय कहंदा मैं तो सारा कुछ छड्ड के दुनिया वालों भज के तुहाडे चरनां च आया, हुण कित्थे भज्जां? सतगुरु कहंदे जे सुख चाहुंदा है तो फिर जिधर मूँह है भज जा। जिथे तेनों किस्मत रब परमेश्वर लै जाएगा उत्थे चला जा। तेरी साडे घर विच थां कोई नहीं। हुण एक भावना नाल आया तो एक गुरु साहब जी कहंदे थां कोई नहीं इत्थे। क्योंकि गुरु का मन मन्निया होया है, तू वैद है, तू वैदगी जानना, जाके मनुखता की सेवा कर। तेनों लगता है कि जिहड़ा एक चार दीवारी बनी हुई गुरु का दर बस इन्ना ही है। ये सारा संसार के तिन्ने लोग जिहड़े ने एक गुरु का ही दर है। पर जदों मन मन जे ना, पहलों तो गुरु का मन मने, जदों अपना मन मन जे फिर हर एक थां ते गुरु नज़र आउंदा है। क्योंकि मन मन्ने तो बिना पढ़ते दसी भी सब में जोत जोत है सोए। सतगुरु जी ने सुजान राय नूं कहा कि तू वैदगी का काम जानना, तो वैदगी तो नालों वध होर इदों वड्डी सेवा करी होनी है। और गुरु साहब का मन मन्निया, क्योंकि साखी आप जी ने सुनी। फिर गुरु साहब जी समा पा के सुजान राय नूं आप लैण वास्ते जाते हैं कि आ जा, हुण तेरे साडे घर विच बड़ी थां है। समझाउणा सी ना कि जे तू डॉक्टर है, जे तू डॉक्टरी का काम जानना है, तो तू सेवा मरीजां दी कर। गुरु की बख्शी हुई सेवा तो यही है ना भी जिहड़ा काम तेनों आउंदा वो काम कर। असल में वो काम ही तेरी सेवा बन जाएगी। और गुरु साहब ने बख्शिश की, कहते सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुरु का मन मन्नै। ते जदों गुरु का मन मन जे, गुरु साहब जी कहते ने जा सतगुरु का मन मन्निया, ता पाप कसमल भन्ने।
तेरे अंदर दे करोड़ा पाप भी गुरु भन देगा। पर नाल गुरु साहब ने अगे फिर कृपा कर दी। देखो ये जिहड़ी सेवा है, ये सेवा रह के तो शरीर में ही की जा सकती है ना, तो शरीर भी केवल मनुख का होए। बाबा कबीर जी ने समझाया, तेनों मनुखा देही मिली है तो भाई संत जना का कहना मन लिया कर, गुरु की दसी हुई सेवा कर लिया कर, सिमरन कर लिया कर। ते नाले इन्ने ढंग दे नाल समझाया, कहते जदों देख तेरे कोल मनुखा शरीर ना रहा, परमेश्वर ने किते चार पैरा वाला बना दिता, दो सिंग उग गए। जदों मूँह केवल गूंगा हो गया, केवल किले ते बज्या होया डैंडा ही करें, उदों किवें गुण गा लेंगा, उदों किवें सिमरन सित सेवा कर लेंगा। बाबा कबीर जी ने उत्ते समझाया, कहते चार पांव दोए सिंग गूंग मुख, तब कैसे गुण गई है। कि दस भाई जे इवें दा तेनों किते जन्म मिल जे चार पैरा वाला, फिर कित्थों गुण गाएगा। और नाल कहते उदों तो फिर पता की होना है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लकई है। फिर तो उठदे बैठदे डंडी पैने ने, क्योंकि तेनों किसी ने माँ की तरह दलार के नहीं कहना कि उठ पुत्र चाह पी, डंडा मार के ठोना कि उठो हुण तेरे गल च पंजाली पाउणी है। उठे हुए नूं डंडे मार के चलाउणा कि थोड़ा छेती चल, धुप चढ़दी पूरा किला वाह के छड्डना है। सतगुरु कहंदे ने जदों उठदे बैठदे डंडे पैणगे भगत कबीर जी दे बचन ने, फिर कित्थे मूँह लुकाएगा। और नाल अगे बचन कह दिते, कहंदे केवल डंडे ही नहीं पैने, हर बिन बैल बिराने हुई है। ये भावें मनुखा शरीर भी है, रब दे सिमरन तो बिना हालत बगाने बल्द वर्गी है। देखो हालत तो बल्द दे भी कोई चंगी नहीं, पर आप जी जिन्ने कोई जिम्मेदारी नाल संबंध रखते हो, किते ना किते लोड़ पैंदी सी किसे ते बल्द मंग के लियाने कि किला वाहुणा वत्तर पूरा पूरा है, एक जोग नाल गल नहीं बननी, एक गवांढी दी मंग लू। ते जदों मंगवी जोग लियांदी हुंदी सी, फिर लालच हुंदा सी कि दोर भी लग जाए, सुहागा भी दोहरा फिर जे चंगी तरह बीत टक्या जाए, भावें फिर टोपी चढ़ जाए, तो भावें फिर बल्द भुखा भी होवे, क्योंकि बगाना लियांदा रोज़ रोज़ मंगिया नहीं जाना। सतगुरु कहते ने तेरी हालत बगाने बल्द वर्गी होनी है जे सिमरन नहीं। हर बिन बैल बिराने हुई है, तो किड्डी माड़ी हालत होएगी। कहते काटे फाटे नाकण, टूटे कंधन नाकण, नक पाड़ जाना, नक दे विच पाड़ के अगले ने तेरे उहदे विच नत्थ पा देनी है। जूड़े दे अगे जुप जुप के जेड़ा जेड़ा कंधे ने ये जेड़े ने सुज जाने ने, वड्डे वड्डे हो जाने ने। फाटे नाकण टूटे कंधन, ते कहंदे को दो को पस गई है। बगाने बल्द नूं किसी ने तूड़ी पा दी ते पा दी, नहीं तो लालच हुंदा पहलों नूं वाहुणा है। फिर जदों तूड़ी खाएगा, भूस खाएगा, पराली खाएगा, तो फिर कित्थे रब दे गुण कह लेगा। उत्थे बाबा कबीर जी ने नाले समझा दिता, कहंदे फाटे नाकण टूटे कंधन, को दो को पस खई है। सारो दिन डोलत बन महिया, अजो न पेट अगई है। सारा दिन जंगल दे विच डोलदा भटकदा फिरेंगा, पर सारा दिन भटक के भी कहेंगा हजे तक पेट ही नहीं भरिया, क्योंकि बगानियां दे वस पै गया ना। और उत्थे बाबा जी ने बचन कहे, कहते सारो दिन डोलत बन महिया, अजो न पेट अगई है। जन भगतन को कहो न मानो, भाई जे भगत जना का गुरु होया तो गुरु जना का कया नहीं मनोगे, क्या होया नहीं मनोगे। कहते कह जन भगतन को कहो न मानै, कियो अपनों पई है। तो भाई फिर दोष किसी ने अपना किया होया तू आप ही भुगतना है, क्योंकि ये तो केवल एक मनुखा देही है।
तेरा जन्म मरण भी कट्टिया जाएगा, ये टेढ़िया मेढ़िया जूना तो भी बच जाएगा, पर भगत जनां दा कहना मन। गुरु की सेवा की है। धन गुरु अमरदास महाराज जी के 2 बचन ने और बड़े कमाल दे ने। धन गुरु अमरदास महाराज जी के ये पावन बचन आप पढ़ने सेवा कि गुर सेवा ते सुख उपजे। पर गुरु अमरदास जी कहते ने गुरु की सेवा पाई किते सौखी नहीं। कहते सतगुरु की जेड़े सेवा है ना, सतगुरु की सेवा गाखड़ी, गाखड़ी दर से बड़ी औखी है। क्योंकि झाड़ू ला के चला जाना, बर्तन साफ कर लेने है, ये भी गुरु की बख्शी सेवा। पर असीं कहांगे किन्नी औखी है जी। ये सेवा जिहड़ी हत्थां पैरां नाल करके कई वारी सगों सेवा की थां ते निमरता की थां ते सगों माण हुंदा है कि मैनूं तो इन्ने साल हो गए गुरु घर च सेवा करदे आ, ते भाई फिर सेवा करना कि एहसान ही करना पिया गुरु ते। सतगुरु कहते ने गुरु की सेवा बड़ी औखी है। सतगुरु की सेवा गाखड़ी ते किन्नी औखी है जी। कहते सिर दीजै आप गवाए। ये सेवा तो तां हो सकती जे सिर वड्ड के गुरु नूं भेटा कर दे। वो सिर भावें शरीर का होवे ते सिर भावें फिर मैं दा होवे, होमे दा होवे। और धन गुरु अमरदास महाराज जी ने यह पावन बचन अपने तजर्बे के विचों कहे। पर नाल एक बचन फिर कह दिता कि जदों सेवा दे विच लग जाइए, गुरु कृपा करे तो फिर बड़ी गाखड़ी सेवा जिहड़ी सौखी बन जाती है। किवें जी? नाल एक बचन होर क्या गुरु साहब जी ने कहते सतगुरु की सेवा अत सुखाली। ये तो बड़ी सौखी है। जदों मन गुरु का नहीं मन्निया उदों तक है औखी, तो जदों गुरु के मन नाल अपना मन भी नहीं मन्निया उदों तक तो औखी लगती है। पर जदों गुरु का मन मन जे सेवा जिहड़ी औखी है तो गुरु की कृपा नाल कहते बड़ी सौखी बन जाती है। सतगुरु के सेवा अत सुखाली। तो कहते फिर जो इच्छे सो फल पाए, उदों तो जो मंगे मिलता भी हुई है। हुण सतगुरु की सेवा अत है तो गाखड़ी, पर सौखी हो जाती क्योंकि धन गुरु अमरदास महाराज जी जदों गुरु नहीं बने, बाबा अमरदास जी नूं जदों समझ पई कि गुरु तो बिना जिहड़ी गत नहीं होनी, गुरु धारण करने वास्ते धन गुरु अंगद देव महाराज जी के चरणों में आए ना, तो धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने देखा तो साडे कुड़म साहब ने संघासन तो उठ के अगों दे जाके जदों गल वकड़ी विच लैन लगे, तो बाबा अमरदास जी ने एकदम थले होके पैरों दे विच सिर रख दिता। सतगुरु कहते ने भाई पुरखा उठ तू साडा कुड़म है। और बाबा अमरदास जी कहते हाँ सतगुरु जी, जदों मैं कुड़म सा ना, जदों कुड़म बन के आया सा उदों मैं मिलनी कीती सी, तुहाडे गले लग के मिलिया सा। पर सच है कि अज मैं कुड़म बन के नहीं, अज मैं तुहाडी सेवा करना आया, सिख बन के आया। जिहड़ी सेवा बड़ी गाखड़ी है सौखी किवें हुंदी है? क्योंकि अपना भाव अगे रख दिता, कला सिर ही नहीं रखिया कि तन मन धन सब सौंप गुरु को। हुक्म मन्निया पाइए, जदों हुक्म मनना आ जाए उदों सेवा सौखी हुंदी। और तन मन ते धन ये सारा कुछ सौंपना है तो औखा, और इन्हां विचों सब तो औखा मन सौंपना। पर धन बाबा अमरदास जी आए, उन्होंने सारा कुछ सौंपिया, क्योंकि उन्होंने ये समझ लग गई कि कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सेवा गाखड़ी थी सौखी किवें होगी? क्योंकि धन बाबा अमरदास जी ने समझ लग गई कि कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जदों यह हूँ वाला मैं वाला सिर वड्ड के भेटा कर दिता। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। हुण सेवा देखो किते गाखड़ी वेखण नूं लगदी है ना, बड़ी गाखड़ी है जी। गागर फड़ी, पहले दिन बचन होए धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे। गुरु साहब ने नहीं कहा कि केड़ी सेवा कर ते केड़ी ना कर।
पर गागर फड़ी। 12 साल तक गागर ढोई और इन्हां 12 सालों के विच धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने धन बाबा अमरदास जी दे नाल कोई बचन ही नहीं किया। कदे नहीं कहा कि बड़ी सेवा बड़ी औखी या सौखी है, बड़ी सोहनी करना या माड़ी करना। पर इतिहास कहता कि साल तो बाद गुरु साहब जी एक दस्तार बख्शते सन, वस्त्र देंदे सन, तो उस दस्तार दे नाल उस वस्त्रों दे नाल साल भर कट जाते सन। वही धो लेने, सुका लेने ते पा लेने। और किन्ने को गाखड़ी देखो लोगों ने उदों बाबा अमरदास जी नूं अमरू थावां ते इतिहास दे विच सानूं इक्को थां ते मिलदा है ना। लोगों ने बड़ा कुछ किया होना है, बुढ़ा कह के सददे होणगे, विचारा कहंदे होणगे कि घरदिਆਂ ने रखिया कोई नहीं, बुढ़े बारे हुण कुड़मां दे घर आके टोकरी ढुंदा, गागर धुंदा। पर जदों अंदर मैं रही नहीं तो फिर लोगों की गल का उत्थे गुस्सा किहड़ा करना सी। लोगों ने तो कह दिता कि हुण छड्ड के जावे भी कित्थे, घरदिਆਂ ने रखना कोई नहीं। पर धन गुरु अमरदास महाराज जी वो जानते हैं कि हुण तो मेरा घर ही ये है। तो देखो दूसरी बेनती 12 साल गाखड़ी सेवा, तो गाखड़ी सौखी किवें? हुण 12 सालों के विच ये देख लो कि 12 सर्दियाँ आईयां, 12 गर्मियाँ आईयां, 12 चौमासे आए। अपने से हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी मौसम है 6 बहारां ने ना, 6 रुत्तां 12 सालों के विच बार बार आईयां। 72 रुत्तां का सामना किया हर तरह की रुत्त दे विच, ते एक भी नांगा नहीं किया है। तो बड़ी गाखड़ी, पर गुरु गुरु जपदिया सिमरन करदिया गुरु की कृपा नाल वो सेवा इन्नी को सौखी लगी कि जिथे गुरु का मन मन्निया सी उत्थे धन बाबा अमरदास जी का मन मन गया, तो गाखड़ी सेवा जिहड़ी सौखी होगी। फिर गुरु साहब जी कहते हैं सतगुरु की सेवा अत सुखाली, भाई ये बड़ी सौखी है, पर जदों मन नूं मना लीए तो फिर जदों सौखी सेवा बन जाए फिर कहते जो इच्छे सो फल पाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, गुरु की बख्शी सेवा दे विचों सुख उपजते ने, पैदा होंदे ने। और नाल कह दिता फिर दुख ना लगे आए, भाई वड्डा दुख भी आके लगता नहीं, वड्डे तो वड्डा दुख भी दुखी नहीं कर सकता। जम्मन मरना मिट गया, काले का किस ना बसाए। सतगुरु कहते हैं इन्ना ही नहीं, गुरु की बख्शी सेवा करके जम्मन मरना भी कटिया गया। इत्थों तक जिन्हों ने सेवा की काल का भी उत्थे जाके वस नहीं चलिया। और जिन्हों ने सेवा की, जिन्हों ने गुरु के हुक्म नूं मन्निया, सतगुरु कहते हैं हर से ते मन रव रहिया, उन्हां दा हरि सच्चे दे नाल मन मन गया, उन्हां दे नाल मन रव रहिया, मिल गया। हर से ते मन रव रहिया, सच्चे रहिया समाए, वो सच्चे प्रभु दे विच ही समा गया, उनका ही रूप हो गया। क्योंकि जदों उनके नाल मन मन जे तो फिर गाखड़ी सेवा तो गाखड़ी हुंदी फिर भी, क्योंकि होर जाती गाखड़ी हो जाती, फिर दुनिया का मन नहीं मनदा। फिर दुनिया के लोग कहते हैं साडे पिछे नहीं चलता, साडे वांग नहीं चलता। क्योंकि धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिख मार्ग चलना। सतगुरु की सेवा गाखड़ी मार्ग तो बड़ा औखा है, पर गुरु कृपा नाल जदों इस मार्ग ते कोई चल जाए फिर गुरु साहब जी कहते नहीं बड़ी सौखी है जी। फिर तो सिर वढ़ा के तली ते भी रख के कहते ने परवाह कोई नहीं, बड़ी सौखी, गुरु के दर तक ही पहुँचना ना। बिना सिर तो 18 शेर का खंडा वाह के भी पहुँच जाना, क्योंकि सौखी होगी गुरु की कृपा नाल। सतगुरु कहते हैं हर से ते मन रव रहिया, सच्चे रहिया समाए। ते नाल के कह दिता नानक हम बलहारे तिन को, जो चलन सतगुरु भाए। धन गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते हैं, मैं उन्होंने तो बलहार जावां कि भाई जेड़े अपने गुरु के भाणे दे विच हुक्म दे विच चलते हैं, उनके भै दे विच रहिंदे ने। महला तीजा
बिन शब्दै शुद्ध न होवै जे अनेक करै सिंगार। हुण अगले श्लोक दे विच गुरु साहब ने फिर बख्शिश की, क्योंकि सेवा पहलों बेनती की सी आपां सारी करी जाने, क्योंकि मैनू लगता है गुरु के शब्द के विचार की सेवा सब तो वड्डी है। भांडे मांजण वाले नूं लगता कि भांडिਆਂ की सेवा सब तो वड्डी है। जोड़ियां दे विच सेवा करने वाले नूं लगता कि नहीं, जोड़ियां की सेवा सारिਆਂ तो वड्डी है। करते सी सारे ही हैं, पर गुरु साहब जी ने कृपा की, एक बख्शिश करते हैं कि बिना शब्द तो अंदर शुद्ध नहीं होना। बिन शब्द शुद्ध ना होवई जे अनेक करे श्रृंगार। क्योंकि बाहर दे श्रृंगार धर्मियां वाला पहरावा पा के बड़ा किया, बड़ी सेवा कर करके विखाई। देखो सतगुरु का एक पावन बचन है कि सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार। डिठै मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। साडे वर्गिਆਂ नूं भुलेखा पै जांदा है कि गुरु साहब जी कहते हैं उदों तक गल नहीं बननी जदों तक शब्द की विचार ना की। असीं कह दिता असीं तो रोज़ ही विचार करने हैं। धन गुरु नानक देव महाराज जी के बचन ने कहते इवें दे विचार भावें जिन्नी मर्जी करी जो। बड़े बड़े ज्ञानी ने जी, बड़े बड़े विद्वान ने, पर सतगुरु कहते हैं किसी लेखे नहीं पैनी। क्योंकि विचार सिर्फ अखरां दे पढ़ के सुना देनी, पढ़ के कर लेनी नहीं। विचार का भाव ही ये है कि जो गुरु कहते ने, जो गुर कहे सोई भल मन है, उन्होंने भला करके मन भी लवे। तो जे मन्निया नहीं फिर गुरु साहब जी कहते हैं वेखते तो सारे ने। शब्द के विचार तो बिना गल नहीं बननी। तो धन गुरु नानक साहब जी कहते विचार कर थोड़ी हुई जी। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे सारे कर्म ही कीते सन। एक कर्म करके भी गल नहीं बनती। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं देखो सब तो पहली गल है शब्द तो बिना अंदर शुद्ध नहीं होना। तो अंदर शुद्ध होएगा जदों तेरे अंदर किते प्रेम ते भावना बनेगी। और सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इक्को पंक्ति दे विच बिल्कुल गल मुका दी सीधी। कहंदे साच कहूँ सुन लिहो सबे। तो जे सवाल अंदरों उठे कि सतगुरु जी सिर्फ सच इत्थे क्या, बाकी सच नहीं किया। हुण क्या तो सारा सच इत्थे गल बिल्कुल तत्त दी। ते जिन्हों कह दी आपां कि 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। इक्को ही तरीका है कि साच कहूँ सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रापे पायो। और गुरु के शब्द के विचार तो बिना अंदर शुद्ध नहीं होना। विचार वो जो गुरु कहते हैं उन्होंने अपने मन के विच विचारे कि मैं कुछ करना कि नहीं। तो जे नहीं करना फिर करने का यत्न कर, अंदर शुद्ध होएगा। नहीं तो गुरु साहब जी कहते हैं धर्मिया वाले श्रृंगार जिन्ने मर्जी करी जा। फिर के सार ना जाने दूजे भाए प्यार। फिर तेनों फिर पति परमात्मा की समझ पैनी हुई नहीं, खबर लगनी हुई नहीं। क्योंकि भावें तू शब्द के विचार भी करना, पहरावा भी धर्मिया वाला पाया और भात दूजा है ना। जे तेरे अंदर भावना कुछ होर है, दूजी है। तो सतगुरु कहते हैं दूजे भाई प्यार। दूजे भाई का अर्थ फिर माया के मूह विच पै के तेनों समझ लगनी नहीं। ये सारा माया के मूह है जी। हुण क्योंकि सानू कई बार लगता माया सिर्फ रुपया तो सिर्फ पैसा है। ये माया सब तो वड्डी है कि मैनू लोग कहण बड़ा विद्वान, लोग हथ जोड़ के सत्कार करन। रुपया पैसा बड़ा होवे पर रुपये की बिल्कुल चाहत ना होवे। सिर्फ ये लोग कहण हथ जोड़ के विद्वान बड़ा, ये भी माया का ही पापा है। दूजा अंदर भावना हो कि मेरा सत्कार बनया रहे। सतगुरु कहते जो भा दूजा हो जाए फिर समझ पैनी नहीं। और नाल अगे शब्द वरते जेड़े कुछ सख्त ने और कह लिए कि बड़ी सख्त ने। सतगुरु कहते ने सा कुशुद्ध सा कुलखणी साध अर्थ वो कौन जी जिंदे अंदर दूजा पा है। जे रूपे इस्त्री उन्होंने कह दिता वो कुशुद्ध है, शुद्ध नहीं। क्योंकि शब्द के विचार करके उस मुताबिक जीवन बनाया नहीं, शुद्ध होया नहीं, सगों कुशुद्ध हो गया। कहते सा कुशुद्ध सा कुलखणी नानक
ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲੇ ਬੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਹਰ ਉਚਰਾ, ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਪ ਸਕਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਤਿਨਹੁ ਕੁਰਬੈਣੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਸੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓ